Today we will discuss about principle of soft and hard acids and bases. According to soft and hard acid base concept, hard acids prefer binding to the hard bases. Hard acids prefer binding to the hard bases to give ionic complexes. क्या लिखा हुआ है कि हार्ड एसिड जो हैं जब प्रेफर करते हैं कि वो हार्ड बेसिस के साथ बाइंडिंग कर सकें और फिर वो एज अ रिजल्ट क्या बनाते हैं आयनिक कॉम्प्लेक्सेस whereas the soft acids prefer binding to soft bases. Soft acids prefer binding to soft bases to give covalent complexes. जब सॉफ्ट एसिड्स कंबाइन करते हैं सॉफ्ट बेसिस के साथ, यहाँ पे क्या था हार्ड एसिड्स हार्ड बेसिस के साथ, यहाँ पे क्या है सॉफ्ट एसिड्स सॉफ्ट बेसिस के साथ जब कंबाइन करते हैं तो एज अ रिजल्ट क्या बनता है कोवलेंट कॉम्प्लेक्स. हार्ड वर्ड के साथ कौन सा बनता है आयनिक कॉम्प्लेक्स एंड सॉफ्ट कोवलेंट कॉम्प्लेक्स जो है वो सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस से बनता है. इट इज sometimes referred to as hard soft interaction principle. It is sometimes referred to as hard soft interaction principle. The large electronegativity difference between hard acids and hard bases. अगर hard acids और hard bases के दरमियान electronegativity difference ज़्यादा हो give rise to strong ionic interaction. तो क्या होगा strong ionic interaction होगी. पहले ही मैंने बताया आप लोगों को ऊपर कि hard acids and hard bases combine करेंगे तो हमारे पास ionic complex बनेंगे. वो कह रहे हैं अगर इन हार्ड एसिड्स और हार्ड बेसिस के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हो तो क्या होगा स्ट्रॉन्ग आयनिक इंटरेक्शंस होंगी. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है वो स्मॉल हो, ठीक है, देन क्या होगी द इंटरेक्शन बिटवीन देम आर मोर कोवलेंट, देन इंटरेक्शन जो है वो कोवलेंट होगी. The electronegativities of soft acids and soft bases. यहाँ पे क्या था hard acids and hard bases. Then electronegativities of soft acids and soft bases are almost same and hence have less ionic interaction. The interactions between them are more covalent. ठीक है, अगर इंटरेक्शन जो है वो किसके दरमियान होगी सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेसिस के दरमियान और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो सेम होगा hence have less ionic interaction. तो उनमें ionic interaction जो होगी वो कम होगी और prefer करेंगी covalent interactions को. The interactions between them are more covalent. The interactions between hard acids soft bases and soft acids soft bases hard bases are mostly polar covalent. जब opposite इंटरेक्शन हो जाएगा हार्ड एसिड का सॉफ्ट बेस के साथ और या फिर वो कह रहे हैं सॉफ्ट एसिड का सॉफ्ट बेस के साथ आर मोस्टली पोलर कोवलेंट एंड टेंड टू बी मोर रिएक्टिव और लेस स्टेबल. मोर रिएक्टिव हो जाएगी और लेस स्टेबल होगी. कोई चीज जब लेस स्टेबल होती है तो वो मोर रिएक्टिव इन फॉर्म में होती है. इसीलिए कह रहे हैं जब अपोजिट कॉम्बिनेशन होगा हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस का और या फिर सॉफ्ट एसिड हार्ड बेस हो और मोस्टली पोलर कोवलेंट होता है पोलर कोवलेंट एंड टेंड टू बी मोर रिएक्टिव और लेस स्टेबल. The polar covalent compounds usually form either more ionic or more covalent compounds if they are allowed to react. Key characteristics in a what was the properties or characteristics of hard acids, hard bases, soft acids and soft bases. First we will discuss about characteristics of hard acids. Hard acids low polarizability, having the low polarizability, high positive charge, small size, not easily oxidized. These are the characteristics of hard acids.
and then we will discuss about hard bases, low polarizability, septodonor orbital, high electronegatividity, not easily oxidized, यानी इसीलिए इसको ऑक्सीडाइज नहीं किया जा सकता. देन है हमारे पास characteristics of soft acids having the high polarizability. देखें यहाँ पे क्या था, having the low polarizability, having the high polarizability. Low positive charge, high positive charge, low positive charge, small size, large size, not easily oxidized, easily oxidized. ये क्या हो गया. देन हमारे पास है सॉफ्ट बेसिस. अब देखें ये एसिड से डिफरेंस क्या था, ये हार्ड था ये सॉफ्ट था. अब क्या है, बेसिस बेसिस है, ये हार्ड है और ये सॉफ्ट है. हाई पोलराइजेबिलिटी अपोजिट हो जाएगा लो पोलराइजेबिलिटी. देन डिफ्यूज डोनर ऑर्बिटल, सेपरेट डोनर ऑर्बिटल, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नॉट इजीली ऑक्सीडाइज्ड, इजीली ऑक्सीडाइज्ड. यहाँ पे आपको सॉफ्ट एसिड्स और हार्ड बेसिस, सॉफ्ट एसिड्स और सॉफ्ट बेसिस की कुछ एग्जांपल्स भी. हाँ जी, हार्ड बेसिस जो हैं हमारे पास, उनकी एग्जांपल्स कौन सी हैं. हार्ड, वही प्रॉपर्टीज है इसकी, लो पोलराइजेबिलिटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नॉट इजीली ऑक्सीडाइज्ड. एंड देन हार्ड बेसिस की एग्जांपल्स क्या हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोक्सिल आयंस आर द एग्जांपल्स ऑफ हार्ड बेसिस. Now we will discuss about the examples of soft bases. Hydridine, carbon monoxide, iodine are the examples of soft bases. Hard acids, examples of hard acids. What was the examples of hard acids? Lithium, calcium ion, aluminum ion, and hydrogen ion are all in positive ions, are the examples of hard acids. And the copper, silver, टाइटेनियम आयोडाइड, ये टाइटेनियम आई है. एंड देन बोरॉन, हाइड्रोजन है. ये इसके एग्जांपल जो हैं कौन है, कौन से हैं, सॉफ्ट एसिड्स के ये एग्जांपल्स हैं. अब ये पीरियोडिक टेबल है, इसमें दिखाया गया कि कौन सी सॉफ्ट एसिड्स हैं, कौन सी हमारे पास सॉफ्ट बेसिस हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि इजीली एसिड्स बनाते हैं और कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इजीली बेसिस बनाते हैं. These are the elements: नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्सेनिक. ये जितने भी हैं ये सारे टेंड टू बी फॉर्म बेसिस, यानी ये वाले एलिमेंट्स जो हैं वो बेसिस बनाते हैं. देन ये वाले बिलो सर्कल्स जो हैं ये क्या है कि ये टेंड टू बी फॉर्म बेसिस एसिड्स, ये एसिड्स हैं. और देन ये ब्रॉडर लाइन है हैविंग द both properties of acidic and basic in nature. वो वाले एलिमेंट्स हैं जो एज एन एसिड भी बिहेवियर शो कर सकते हैं और एज एन बेस भी, यानी इंटरमीडिएट इन नेचर होंगे. Then we will discuss about Pearson absolute hardness, eta. Quantitative method to measure hardness and softness predicted matures. First and second point is that फर्स्ट वन क्या था कि क्वांटिटेटिव मेथड है टू मेजर करने का सॉफ्टनेस एंड
हार्डनेस को। सेकंड क्या है, फॉर्मूला यूजेस आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। कि पेयरसन एब्सोल्यूट हार्डनेस का जो फॉर्मूला है वो आयनाइजेशन एनर्जी यूज करता है एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ईटा इज इक्वल टू आयनाइजेशन माइनस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी divided by 2. Defines hardness as a large difference between ionization energy and electron affinity. अब लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि लोमो क्या है और होमो क्या है। ये देखें, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एल से लोएस्ट, यू से अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये देखें, इस ये पूरे का पूरा जितने भी इसके कहा जा सकता है कि लेवल्स हैं या स्टेट्स हैं वो सारी की सारी फ्री हैं। और यहाँ भी क्या है कि ये हाईएस्ट है और हाईएस्ट पे ही फील्ड है, इवन दैट लास्ट वाले भी फील्ड है इसके। तो होमो में क्या है, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी सबसे अपर साइड पे, अपर स्टेट पे जो इसकी ऑर्बिटल है वो लेवल जो है वो शेल जो है वो उसका ऑक्युपाइड है। और जब उसको हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये तो क्या होगा, ऐसा एक्साइटेशन, ये वाला जो मॉलिक्यूल है हमारा वो एक्साइट कर जाएगा अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। ये लोएस्ट एनर्जी एनर्जी हमारी स्टेट जो है वो कैसे शो होती है, डाउन लोएस्ट होती है, अपर साइड पे क्या होती है, हाईएस्ट होती है, इन ग्राउंड स्टेट में लो होती है, और इन एक्साइटमेंट एट एक्साइट स्टेट पे क्या होती है, या ये हाईएस्ट होती है एनर्जी। और ये देखें, एक्साइटेशन बाय लाइट, अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं ये हमारे ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ लाइट क्या होगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन है वो जंप कर जाएगा इस वाले में, एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। एंड देन सॉफ्टनेस, उसका आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू होमो एनर्जी और इलेक्ट्रॉन affinity is equal to LOMO energy. And then a softness S is equal to 1 over H के halogens as an examples, यहाँ पे क्या है, पेयरसन एब्सोल्यूट हार्डनेस में इसका एक एप्लीकेशन भी है। स्ट्रेंथ ऑफ द, व्हाट वाज द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिडिक एसर्स, यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड एसिड फॉर्म में मौजूद होगा तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, क्लोरीन मौजूद होगा अगर एसिड फॉर्म में, HCl फॉर्म में, ब्रोमीन HBr में, आयोडीन HI में, तो देन उसकी हार्डनेस या उसकी सॉफ्टनेस क्या होगी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ट्रेंड इन हीट पैरेलल होमो एनर्जी। एंड देन देखिए फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन के मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है एंड स्मॉलेस्ट है, लीस्ट पोलराइजेबल है, इज इक्वल टू हार्डेस्ट। कि अगर वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, स्मॉलेस्ट है, लीस्ट पोलराइजेबल है, देन इज इक्वल टू किसका होगा कि वो हार्डेस्ट है। एंड देन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है हमारे पास, तो आयोडीन क्या है, हार्डनेस डिक्रीज एज होमो एनर्जी इंक्रीज। तो इनकी हार्डनेस जो है वो डिक्रीज होती है जैसे ही होमो एनर्जी जो है वो इंक्रीज करती है। अब ये भी इन सिंपली वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा फ्लोरीन है वो हार्डेस्ट है, लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन के लेस हार्ड है। अब रीजन क्या है, फ्लोरीन का जो है वो स्मॉल इन साइज होता है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के। These are the here are the some examples of soft metal ion. Just note down that the name gold arum is the soft metal ion. A very soft metal ion कौन सी है, gold, or in other words we can say that arum. Arum is the second name of the gold. And then here is that a very hard metal ion. Very hard metal ion कौन सी example है, वेरी हार्ड मेटल आयन में एल्यूमिनियम थर्ड जो है इज द एग्जांपल ऑफ वेरी हार्ड मेटल आयन। एंड देन थर्ड इज दैट एम्बिडेंट, एम्बिडेंट लिगेंड। एम्बिडेंट लिगेंड क्या होता है, जब कोई कॉम्प्लेक्स बनता है तो एक मेटल होती है, ठीक है,
तो उसके साथ उसके लिगेंड्स होते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस क्या होता है, एक आम रिएक्शन जो होता है उसमें डिफरेंस क्या होता है, जब उसमें कोवलेंट बॉन्ड बनता है, कॉम्प्लेक्स जब बनता है तो उसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है, और उसका बॉन्ड मोस्टली आप यहाँ पे भी देख लें वो एरो फॉर्म में शो होता है। जब भी कहीं पे कॉम्प्लेक्स बना हुआ होता है तो वहां पे जो उसके बॉन्ड्स होते हैं विद मेटल एटम के साथ, तो वो होते हैं एरो फॉर्म में, यानी कि उसका बॉन्ड जो है वो एरो से शो किया हुआ होता है। लेकिन अगर कोवलेंट बॉन्ड हम कहीं पे देखें तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन फॉर्म में होता है। तो इमीडिएट लिगेंड की बेस्ट एग्जांपल कौन सी है, थायोसायानेट। थायोसायानेट इज द पार्टिकुलरली इंटरेस्टिंग लिगेंड। वो क्या कह रहे हैं, थायोसायानेट जो है एक पार्टिकुलरली इंटरेस्टिंग लिगेंड है। इट इज ambidentate and can bind to metal ion either through the sulfur or the nitrogen। यानी कि इसमें क्या होगा कि वो या तो सल्फर उसके साथ मेटल एटम के साथ अटैच होगा या फिर नाइट्रोजन एज अ लिगेंड। ये दिखाया भी गया है थायोसाइनेट कॉम्प्लेक्स। Now we'll discuss about different applications of soft, hard, acid, base principle. First one is that in hydrogen bonding, सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस की फर्स्ट एप्लीकेशन जो है वो क्या है, इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में यूज हो रहा है। द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड इज पॉसिबल इन केस ऑफ वाटर, NH3 अमोनिया एंड HF। सिंस द डोनर एटम हमें पता है कि फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो या फिर नाइट्रोजन आर द डोनर एटम्स। सिंस द डोनर एटम्स फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर हार्ड Lewis bases and their interactions with particularly positively charged। अब पार्टिकुलरली पॉजिटिव चार्ज लिखा हुआ है, देखें लिवस बेसिस, हार्ड लिवस बेसिस। अब वो किसके साथ टेंड टू बी इंटरेक्ट विद द हार्ड एसिड के साथ, हार्ड लिवस बेसिस है तो हार्ड लिवस एसिड के साथ वो इंटरेक्शन मोर इजीली यानी इन मोर इजीली वे में करेगा। देन देखें यहाँ पे लिखा सिंस द डोनर एटम्स, कौन कौन से डोनर एटम्स हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन are hard Lewis bases हैं and their interaction with partially positive charged hydrogen, किसके साथ, partially positive charge हाइड्रोजन के साथ ये इंटरेक्ट करेंगे। जैसे कि ये देखें वाटर है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन की इंटरेक्शन में है। अगर ये नाइट्रोजन है तो ये भी डोनर एटम है और ये भी हाइड्रोजन की इंटरेक्शन के साथ उसने बॉन्ड बनाया हुआ है। और यहाँ पे देखिए HF है तो इसकी इंटरेक्शन भी, फ्लोरीन की इंटरेक्शन भी हाइड्रोजन के साथ है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन आयन के साथ है। अब आर हार्ड लिवस बेसिस एंड देयर इंटरेक्शन विद पार्शियली पॉजिटिव चार्ज्ड हाइड्रोजन व्हिच इज अ हार्ड एसिड आर स्ट्रॉन्गर। तो इनके दरमियान जब ये बॉन्ड बना लेंगे तो ये स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे, आर स्ट्रॉन्गर। Second one is that linkage of ambidentate ligand टू मेटल एटम के साथ। अब एम्बिडेंटेट लिगेंड्स का जो लिंकेज है वो मेटल एटम्स के साथ ही होती है। ये पहले मैंने कॉम्प्लेक्स में भी आपको बताया हुआ है कि लिगेंड्स जो है वो अटैच होते हैं मेटल एटम के साथ ही। द एम्बिडेंटेट लिगेंड्स thiocyanate can bind either by सल्फर एंड और नाइट्रोजन एंड, कि उसके साथ या तो साइनेट के साथ सल्फर अटैच्ड होगा या फिर उसके साथ नाइट्रोजन अटैच्ड होगा। द बॉन्डिंग मॉड कैन बी डिटरमिन्ड बाय यूजिंग हार्ड बेस प्रिंसिपल। अब वो कह रहे हैं अब हार्ड सॉफ्ट एसिड एंड बेस प्रिंसिपल से हम इस बॉन्डिंग का मॉड जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इट बॉन्ड्स थ्रो सल्फर एटम व्हेन बॉन्डेड टू प्लैटिनम। वो कह रहे हैं जब ये प्लैटिनम के साथ अटैच्ड होता है तो क्या होता है, इट बॉन्ड्स थ्रो सल्फर एटम के साथ अटैच होता है व्हेन बॉन्डेड टू प्लैटिनम a soft acid। ये क्या है, प्लैटिनम क्या है, एक सॉफ्ट एसिड है। however it bonds through nitrogen atom
व्हेन लिंक्ड विद क्रोमियम, जब क्रोमियम के साथ होता है तो नाइट्रोजन एटम होता है, हार्ड एसिड होते हैं, वो सॉफ्ट एसिड्स हैं। एंड ये प्लैटिनम वाले सॉफ्ट एसिड्स बनाएंगे, और क्रोमियम वाले जब वो नाइट्रोजन के साथ इन बॉन्डिंग में होंगे तो देन वो क्या होंगे, हार्ड एसिड। थर्ड वन इज दैट साइट प्रेफरेंस इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस। अब यहाँ पे देखिए कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं आर सी ओ एक्स, सी डबल बॉन्ड ओ, इट्स मीन दैट इट, ये क्या थे, ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स थे, आर सी ओ एक्स। कार्बोनाइल हैलाइड भी आप बोल सकते हैं, इज अ हार्ड एसिड एंड रिएक्ट विद द नाइट्रोजन एंड ऑफ thiocyanate ion to form an acetyl isothiocyanate। अब देखें एसिटल असाइल थायोसाइनेट बनता है वगैरह, कैसे बनता है, जब क्या होगा, थायोसाइनेट है, एसियन रिएक्ट करेगा विद कार्बोनाइल हैलाइड के साथ, तो हमारे पास टू फॉर्म बनेगा एन असाइल आइसोथायोसाइनेट वेयर द सॉफ्टर methyl ग्रुप, सॉफ्टर ये देखिए मिथाइल ग्रुप है, एट बॉन्ड्स टू द सल्फर एटम एंड फॉर्म्स मिथाइल थायोसाइनेट। Fourth one is that inorganic reactions, soft hard acid base principle is used to predict the outcomes of some of the reactions, यानी सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस प्रिंसिपल जो है वो यूज किया जाता है कि आउटकम्स फाइंड आउट कर सकें सम ऑफ द रिएक्शंस की। द फॉलोइंग रिएक्शन इज पॉसिबल बिकॉज आर्सेनिक इज सॉफ्टर देन phosphorus एंड आयोडीन इज सॉफ्टर देन फ्लोरीन। अब वो कह रहे हैं फॉलोइंग रिएक्शन जो है वो पॉसिबल है, क्योंकि रीजन क्या है, क्योंकि आर्सेनिक जो है वो सॉफ्टर है देन फॉस्फोरस से, और फॉस्फोरस जो और आयोडीन जो है इज सॉफ्टर देन फ्लोरीन से, तो देन ये हमारा रिएक्शन बन रहा है आर्सेनिक फ्लोरीन फॉस्फोरस आयोडीन का। देन देखें एज बोथ arsenic and phosphorus are soft but relatively arsenic is softer। ये दोनों ही सॉफ्ट हैं लेकिन वो कह रहे हैं आर्सेनिक जो है वो ज्यादा सॉफ्टर है एज कम्पेयर टू फॉस्फोरस। द फॉलोइंग रिएक्शन इज पॉसिबल सिंस मैग्नीशियम इज हार्डर acid देन बेरियम के एंड ऑक्सीजन इज हार्डर देन सल्फर से। Fifth one is that precipitation reactions. What was the precipitation reaction? The softer acids like जैसा कि these are the examples of softer acids and broader line acids like कौन से हैं border line acids वो दिखाए गए हैं पहले फर्स्ट पे हमारे पास मरकरी था। सॉफ्टर एसिड्स में कौन कौन से थे, मरकरी है, सिल्वर है और मरकरी +2 फॉर्म में मौजूद है। एंड देन हमारे पास बॉर्डर लाइन एसिड्स कौन से हैं, आयरन है, निकल है, कॉपर है, जिंक है, लेड है, एक्सेट्रा। कैन बी प्रेसिपिटेटेड एज सल्फाइड form their aqueous solutions since sulfur ion is a softer base, कि जब सल्फर आयन होगा वहां पे तो वो सॉफ्टर बेस होगी, बाकी क्या है सॉफ्टर एसिड्स हैं। कैन बी प्रेसिपिटेटेड, वो प्रेसिपिटेटेड कैसे होते हैं, एज सल्फाइड फ्रॉम देयर एक्वस सॉल्यूशन सिंस सल्फर आयन इज अ सॉफ्टर बेस। Sixth one is that nucleophilic addition of alpha beta unsaturated carbonyl compound, just note down that nucleophilic addition reaction होती है ऑफ किसकी, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स की। ड्रॉबैक्स ऑफ पियर्सन हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस मॉडल। अब इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, द पियर्सन हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी इज इन डायरेक्ट कॉन्ट्राडिक्शन विद फॉजान रूल्स। अब फॉजान रूल्स के साथ वो कह रहे हैं डायरेक्ट इसकी
कंट्राडिक्शन है। फॉर एग्जाम्पल फजान रूल प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ ब्रिलियम साल्ट। फजान रूल्स किस लिए यूज होते हैं कि वो ब्रिलियम साल्ट की नेचर को फाइंड आउट करते हैं। फजान रूल्स प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ ब्रिलियम साल्ट टू बी मोर कोवलेंट, जो कि मोर कोवलेंट होते हैं। बट अकॉर्डिंग टू हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल, द beryllium ion is hard acid and it is expected to show charge control bonding that results in more ionic nature for beryllium compounds। अब यहाँ पे देखें कि ये देखिए फजान रूल्स प्रोडिक्ट द नेचर ऑफ beryllium salts। फजान रूल्स क्या करते हैं, प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ टू बी मोर कोवलेंट होते हैं, जो कि beryllium salts टू बी मोर कोवलेंट इन नेचर। बट अकॉर्डिंग टू, अब वो कह रहे हैं इसके अकॉर्डिंग जो है वो मोर कोवलेंट है beryllium salts जो है, लेकिन अकॉर्डिंग टू हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल के द beryllium ion is hard acid and is expected to show charge control bonding that result in more ionic nature। अब यहाँ पे क्या था, उसके अकॉर्डिंग क्या था, मोर कोवलेंट इन नेचर, और यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग क्या है, मोर ionic in nature for beryllium compounds, but this is not true। Similarly, hydrogen ion is a hard acid। कह रहे हाइड्रोजन आयन एक हार्ड एसिड है, एंड हाइड्राइड आयन इज अ सॉफ्ट बेस, लेकिन हाइड्राइड आयन जो है वो एक सॉफ्ट बेस है। अकॉर्डिंग टू सॉफ्ट हार्ड प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होगा, द इंटरेक्शन बिटवीन देम मस्ट बी पोलर कोवलेंट। तो इनके दरमियान इंटरेक्शन जो होंगी वो पोलर कोवलेंट होती है, एंड हाइड्रोजन H2 मस्ट बी अनस्टेबल। अब पोलर कोवलेंट कोवलेंट इन नेचर है तो H2 है, जब तो क्या H2 फॉर्म मस्ट बी अनस्टेबल होगी। Indeed, hydrogen H2 is a stable molecule with pure covalent nature में। अब देखें प्योर कोवलेंट नेचर में वो स्टेबल हो सकता है, लेकिन H2 फॉर्म में जब वो इतना पोलर नहीं होता देन वो अनस्टेबल हो सकता है, लेकिन प्योर कोवलेंट नेचर में वो स्टेबल ही होता है। Here we will discuss about some conclusion of the hard soft acid base principle। First one is that hard nucleophiles tend to react with hard electrophiles tend to react with hard nucleophiles। जैसे हम कहते थे कि हार्ड एसिड जो है वो हार्ड बेसिस के साथ इंटरेक्शन में ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे को, इसी तरह है हार्ड इलेक्ट्रोफाइल्स टेंड टू रिएक्ट विद हार्ड न्यूक्लियोफाइल्स, एंड सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल्स टेंड टू रिएक्ट विद सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स। अब पहले देखें हार्ड है इलेक्ट्रोफाइल, वो हार्ड न्यूक्लियोफाइल के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एंड देन है सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल्स टेंड टू रिएक्ट विद सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स। सेकेंड इज दैट द हार्ड इंटरेक्शन, यहाँ पे इंटरेक्शन होगी हार्ड की, इज गवर्न प्राइमरली बाय electrostatic attraction between the positively charged electrophiles and negatively charged nucleophiles। थर्ड वन इज दैट सॉफ्ट इंटरेक्शन यहाँ पे होगी, ऊपर क्या था हमने किसको देखा, हार्ड को, तो दो किसके दरमियान हो रही है, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स एंड नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स। थर्ड वन इज दैट सॉफ्ट इंटरेक्शन इज गवर्न्ड प्राइमरली बाय द मिक्सचरिंग ऑफ ऑर्बिटल्स बिटवीन LOMO of the electrophiles and HOMO of the nucleophiles। अब किसके इंटरेक्शन होगी, सॉफ्ट के इंटरेक्शन है। ऊपर किसके हमने किया है, हार्ड इंटरेक्शन, वो कहाँ कैसे होती है, इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल्स एंड नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल्स। अब हम डिस्कस करेंगे सॉफ्ट इंटरेक्शन इज गवर्न्ड primarily by the mixing or overlapping of orbitals between LOMO of the electrophiles and HOMO of the nucleophiles। अब at last is that also the hard soft acid base theory is only one of the several factors that determines the outcome of a nucleophilic addition to अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स। मैंने पहले ही आपको बताया कि नोट डाउन कर लें कि ये आउटकम्स हैं, इसकी आउटकम है कि वो क्या देती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देती है टू किसके, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स।